Hello, welcome to my maths class. Students, today I'm going to start the new topic in the differential equations, that is the homogeneous differential equations. Today we will learn that how we can solve homogeneous differential equation. But before that, we would like to know what is homogeneous differential equation. Homogeneous का literal meaning, it means the uniformity or the same level. Here it means the same degree. Now, what first of all, let us try to understand what is the homogeneous function of degree n. On your screen, you can see I have written here two functions. One is f1 and the other one is f2 in terms of x and y together. Now, we will replace, in both of these cases, we will replace x by lambda x and y by lambda y. Let us see what happens. I have replaced x by lambda x and y by lambda y. So here on the right side also, x is replaced by lambda x and y is replaced by lambda y. You can see like lambda into lambda, lambda square, here also lambda square. So lambda square I will take out. So it is left, this is y square plus this lambda into lambda, lambda square is now outside of this bracket. Now what is this? You can see this is exactly same as this. So I can write it as lambda square f x y. Now you can see what is lambda. Lambda क्या था यहाँ पर? एक नॉन जीरो स्केलर था. ठीक है. So now f1 lambda x lambda y has become equal to lambda square. Lambda is common here. Lambda square fxy. Therefore we can say this fxy is a function, homogeneous function of degree 2. Now let us consider this second case. Here also I'm replacing this x by lambda x and y by lambda y. Now let us see what happens. This is 2 lambda x minus 3 lambda y. So now you can see lambda is common. So this is 2x minus 3y. What is this? You can see here this 2x minus 3y is exactly equal to this f2. So this is lambda. We can write it as this is equal to lambda fxy. So now we can see lambda is common, which is a non-zero scalar that is common here. And now we can say that our this function, this is 2 and it was f1. This was f1 xy. Now we can say this f2 function is a homogeneous function of degree 1, because here you can see lambda raised to power 1 is here. Therefore it is a homogeneous function of degree 1, and this because lambda is having the power 2 here. Therefore this this given function is a homogeneous function of degree 2. I have considered one more function f3 x y. It is cos of x upon y. So here in this function again I have replaced this x by lambda x and y by lambda y. So here on the right side also, but you can see these lambdas are cancelled here. So again it is cos xy, that is the same. It is equal to f3 xy. Okay, this is equal to, अगर हम यहाँ पर देखें, so what is this now? f3 lambda x lambda y. लैम्डा यहाँ पर है ही नहीं इसमें, तो I can write it as 1 here. 1 can be written as lambda raised to power 0. So lambda raised to power 0, and this is equal to your f of x y. So I can say my given this function in terms of x y, this function is a homogeneous function of degree 0. Here I have taken one more function, that is a for xy, that is sin x plus sin y. And when I have replaced this x by lambda x and y by lambda y,
lambda y, then I can see here the sine lambda x plus sine lambda y, means x is replaced by lambda x and y is replaced by lambda y. So now it is not possible, आप देख सकते हैं ये lambda आप common नहीं निकाल सकते. Why you cannot take it out common? Because it is in the angle. It is not multiplied with the sin x as a factor. It is not written here outside sine. It is not written here outside sine. It is there in the angle. So now we cannot take it out common. Therefore, we can say that it cannot be written as lambda raised to power n f of xy for any n, for any n. It is not possible. Okay, so that's why we can say this implies f for xy is not a homogeneous. It is not a homogeneous homogeneous function. It is not homogeneous function. ठीक है जी. हाँ जी. तो what we have learned that a function f(x,y) is said to be homogeneous function of degree n. कब? When f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to power n fxy, where this lambda is a non-zero constant. It is a non-zero constant. Now I think what are the homogeneous functions, that's clear to you. But now our problem is, what is the homogeneous differential equation? Homogeneous differential equation कौन सी है? Let us try to understand this homogeneous differential equation. हाँ जी, देखिए homogeneous differential equation. dy by dx is equal to, suppose there are the two functions with the same degree. ये दोनों function same degree में होने चाहिए. ठीक है, in the numerator as well as in the denominator. ठीक है, these both functions have the same degree in the numerator as well as in the denominator. And if we write it as f x y, if we write it as f of lambda x lambda y, and we write this g x y also as g of lambda x lambda y, then it is equal to f of xy upon g of xy. Then it is called that it is the differential equation of 0 degree. Now why 0 degree? देखिए suppose अगर आप suppose कीजिए f x y का डिग्री है 2, तो आपके पास lambda x f of lambda x lambda y में आ जाएगा lambda raised to power 2 outside, as we have just done it before this. Or as I have written here also कि f and g both should have the same degree. दोनों की same degree है. तो अगर g की डिग्री सेम है जो f की है, सेम है, तो यहाँ पर भी lambda raised to power 2 आएगा. And this will be cancelled. When this is cancelled, so it will be left here 1. 1 का मतलब होता है lambda raised to power 0. Lambda raised to power 0. 1 means lambda raised to power 0. So hence we can say that homogeneous differential equation जो है, that is always it is with degree 0. dy by dx में यहाँ पर degree 0 होगी इस homogeneous. ठीक है. Now there are few important points you should remember. तो इसमें ये पहला है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर सपोज कीजिए है आपके पास cos x, then it is not a homogeneous function, या sin x है, then it is not a homogeneous function. यानी अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, then you must have it in this form. उसका एंगल जो है वो either it should be in the form cos x upon y, or it should be in the form of cos y upon x, sin x upon y.
or sin y upon x या tan x upon y या tan y upon x. Means if the angle is in this form cos x या cos y या sin x या sin y, then it is not homogeneous differential equation. ये आपने बिल्कुल बात ध्यान में रखनी है, ठीक है. And in homogeneous differential equation, what do we ultimately convert it into the variable separable form, and for that we do the substitution. If it is dy by dx, अगर dy by dx होता है is equal to something, then we put y upon x is equal to v, where v is also variable, it is not a constant. Means y is equal to vx का substitution करते हैं and we convert it in the form of वेरिएबल सेपरेबल, और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स? बिकॉज वी वांट टू गेट dy by dx, हमें dy by dx चाहिए होता है. ओके, नाउ if it is in the form of dx upon dy is equal to, अगर ये है आपके पास, then we put x upon, क्योंकि यहाँ x upon y है, then we put x upon y is equal to v. Means x is equal to x. This implies we put x is equal to v into y. In that case, suppose one more, जैसे आपको बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, as in the case of trigonometry, not only in trigonometry, we can say the same rule is applied in the case of exponential function. Exponential में भी अगर आपके पास तो हम इसको लिखेंगे, it is not only for trigonometric function, it is for exponential functions also. यानी e वाला जो आपका फंक्शन होता है, e की पावर अगर x है, अगर आपके पास e की पावर में x अपॉन y होना चाहिए, e की पावर में y अपॉन x होगा, e की पावर अगर x है या e की पावर में only y is there, then that is not differential equation. Trigonometric function, exponential function and logarithmic function. लॉग फंक्शन के लिए भी, यानी 3 फंक्शंस हमारे पास ऐसे आ गए हैं जिनमें ये रूल आपका अप्लाई होगा. कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन. यानी लॉग में भी आपका x अपॉन y होना चाहिए या फिर log ऑफ y अपॉन x होगा. ओनली देन इट विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. log ऑफ y अपॉन x होगा, ठीक है. यानी आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं, इसमें आपको x अपॉन y होना चाहिए या y अपॉन x. e रेज टू पावर x है, सपोज यू हैव ओनली e रेज टू पावर x, ये है आपके पास, या फिर ये है आपके पास. इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन. या फिर आपके पास log x है, log y है खाली, ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, जैसे कि sin, सपोज कीजिए sin x है या sin y है, देन इट इज नॉट होमोजेनियस, दिस इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी. अगर ये केसेस हैं तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. तो फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस केस में है? किस केस में होगी? वो होगी e रेज टू पावर x अपॉन y होना चाहिए या e रेज टू पावर y अपॉन x होगा, तभी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. log ऑफ x अपॉन y होना चाहिए या फिर log ऑफ y अपॉन x होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड साइन ऑफ x अपॉन y होना चाहिए या साइन ऑफ y अपॉन x होना चाहिए, ओनली देन इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, वैसे अगर सपोज करो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन गिवन टू यू, देन हाउ यू वुड आइडेंटिफाई व्हिच फॉर्म of differential equation this is, whether it is a variable type, variable separable type, or it is homogeneous or it is linear. तो उसके लिए homogeneous के लिए तो I explained you, whenever the degree is same, only then it is the homogeneous. And variable separable के लिए I had explained you, whenever the variables x and y are in multiplication, only then it is homogeneous. Oh, sorry, variable separable. If there is plus or minus sign in between the two,
in between two variables, then it cannot be a variable separable type. And this one's now let us explore questions of exercise 9.5. इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x square plus x by dy is equal to x square plus y square into dx. अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? whenever the question is to solve the differential equation, we get the equation in the form of dy by dx. तो हमने इसको dy by dx की फॉर्म में लिख लिया. वैसे तो देखते सारी ये पता चल रहा है इट इज होमोजेनियस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डिग्री 2 है, ये डिग्री भी 2 है, ये नीचे भी डिग्री 2 है, और x जो आपका है यहाँ पर x एंड y, इन दोनों की जो डिग्री है वो मिला के क्या हो जाएगा? उनकी डिग्री भी आपकी 1 + 1. यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, 1 + 1 मिला के 2 हो गई ये डिग्री. ठीक है, तो डिग्री ऊपर भी 2 है, डिग्री नीचे भी 2 है, सेम डिग्री है, देयरफॉर इट इज होमोजेनियस. लेकिन अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है, लिसन मी केयरफुली, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, शो दैट गिवन differential equation is homogeneous. अगर ये आ जाएगा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये homogeneous differential equation है. वो कैसे करेंगे? जैसा भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, हमने ये जो भी whatever the dy by dx, ये आपको homogeneous जो भी आपको ये दी हुई है आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने क्या किया, इसको fxy is equal to करके अब x is replaced by lambda x and y is replaced by lambda y कर देंगे. ठीक है, now after this what to do? अगर ये f lambda x lambda y is equal to, आप ये देखिए fxy के इक्वल आ गया, therefore it is homogeneous differential equation of 0 degree. क्योंकि ऊपर से लैम्डा स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, लैम्डा आपके पास है ही नहीं, लैम्डा की पावर 0. therefore the given differential equation is the homogeneous differential equation of डिग्री क्या है? हाँ जी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई dy by dx is equal to x square plus y square upon x square plus xy. तो प्रूव हो गया ये होमोजेनियस है. अब इसके बाद हाउ टू सॉल्व इट? एक्चुअली whenever we get a homogeneous differential equation, we convert it in the form of variable separable form, and there is particular step, that is the process of substitution. अब substitution किसका करेंगे? किसका substitution करेंगे? Try to understand this. इसमें आप ये y upon x है ना यहाँ पर, इसलिए हम पुट करेंगे यहाँ पर y upon x को, y upon x को भी पुट करेंगे. अगर ये dx upon dy होता तो हम x upon y को भी पुट करते. तो अभी हमने यहाँ पर पुट किसको किया है? y upon x को v. तो y यहाँ पर v is a variable, it is not a constant, it's a variable. So y is equal to vx हो गया, and now we will differentiate it with respect to x. y with respect to x because we want to get this dy by dx. okay, तो हम dy by dx यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया with respect to x, तो dy by dx आ गया. vx because these two are in multiplication, so product rule will be applied. पहले आप x का डिफरेंशिएशन with respect to x करेंगे तो 1 आएगा, v into 1 plus अब x will be written as it is and v का derivative with respect to x dv by dx हो गया. Now we will use it in 1. This is your number 1. We'll put it here. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy by dx की जगह आपके पास आ गया v plus x dv by dx, और जहां भी y है उसकी जगह आपने vx रख देना है. तो x स्क्वायर प्लस y की जगह vx, तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो गया ये, अपॉन x स्क्वायर प्लस x, एंड व्हाट इट विल बी हियर, y की जगह आपका क्या आएगा जी? v into x. So now we can see what is common from here. From the numerator and denominator, x square is common. So x square after cancellation, you will left with 1 plus v square upon 1 plus v. You can see it here. It is left. Now we will take this v to the other side. ठीक, ये जो आपके पास इधर v है, हम इसको दूसरी साइड इधर शिफ्ट कर देंगे अभी. ओके, let us see then how it would be done.
after simplification you can see now it is totally in which form now it is now in the form of वेरिएबल सेपरेबल टाइप इट इज वेरिएबल सेपरेबल क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक तो v वाले टर्म्स हैं और एक x वाले हैं तो नाउ वी कैन सेपरेट दीज एंड देन वी विल इंटीग्रेट एंड आफ्टर इंटीग्रेशन we will then again substitute the value of v क्या रखा था y upon x let us see how we will do it further हाँ जी देखिए अब हमारे पास आ गई है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v का इंटीग्रेशन करना है और राइट साइड में dx अपॉन x हमें दिया हुआ है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर हमें अब देखिए लेफ्ट साइड में जो है 1 अपॉन v अपॉन 1 माइनस v अब इंटीग्रेशन के टाइम पर हमने देखा था अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है तो डिवीजन करते हैं यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है एंड इन द डिनोमिनेटर आल्सो डिग्री इज 1 व्हेन द डिग्री इज सेम डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is same as that of the denominator or it is more than the degree of denominator then division we have to divide it by long division method इसको divide करेंगे हमने 1 minus b से यानी इससे 1 plus b को divide किया है so quotient is -1 we have written here and the remainder is 2 and then upon this denominator ये जो आपका जो divisor है that will be written as it is अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे it will be written as -v and this is +2 but here we can see it is linear expression here in the denominator तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log of 1 minus v लेकिन v का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे तो -1 से डिवाइड किया प्लस c1 अभी ये तो हमने यहाँ पर इस लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन किया है लेफ्ट साइड का 1 plus v upon 1 minus v का है ना लेकिन अभी जो हमारा राइट साइड का इंटीग्रेशन है वो अभी रहता है ठीक है राइट साइड का इंटीग्रेशन अभी इसमें एक चीज और है ये आपका -2 हो गया अभी और -2 माइनस पावर इधर चली जाएगी अगर इसकी तो ये 1 minus b की पावर -2 हो जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा एज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग्स ठीक है अब इसको हमने यहाँ इसमें पुट किया इसको नंबर 2 दिया हुआ एक्चुअली तो ये हमारे लिए नंबर 2 है अब इसमें इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आ गया है अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस -v प्लस log of 1 minus v की पावर -2 इज इक्वल टू राइट साइड में भी हमें इंटीग्रेशन लेना है ठीक है एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log x नाउ substitute the value of v क्या था हमारा y upon x put the value of v here and simplify it calculation part is left only calculation किया है so now after this you can see it is also in log this is also in log take these two together and this to the other side log a minus log b is log a upon b log a and upon this b and this will be cancelled so we are left with this so this is your final answer so this question is done and देखिए now in question number 2 it is given that dy by dx is equal to x plus y upon x अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में x की डिग्री कितनी है 1 y की डिग्री कितनी है 1 डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है सेम डिग्री है therefore it is a homogeneous अभी यहाँ पर अगर क्वेश्चन में it is not given that show that is the homogeneous differential equation then there is no need to do it by that को f of lambda x and lambda y करने की कोई जरूरत नहीं है शो नहीं करना इसको डायरेक्टली सिर्फ हम सॉल्व करेंगे अब हम अच्छा अभी ये dy by dx इक्वल टू ये x upon x plus y upon x कर लिया हमने ओके ये y upon x है ना ये y upon x है तो हमने y upon x को ही यहाँ पर v पुट किया है तो y is equal to bx हो गया ओके पुट नाउ दिस वैल्यू ऑफ dy by dx ये हमेशा यही निकलेगा अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने करके बताया था dy by dx यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी and y upon x is replaced by v cancel by v it's a very easy question directly variable separable हो गया ये आपका इसको किया और इसके बाद simply it has been done you can see it clearly
तो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए इट इज गिवन। सबसे पहले देखो, जब भी सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए आता है द डिफरेंशियल, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप मस्ट बी टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू, आ गया ये dy by dx इज इक्वल टू। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई, सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर x is one variable, y is another variable, and in between these two variables there is plus minus sign, therefore it can't be a variable separable। वेरिएबल सेपरेबल तो ये है ही नहीं है। तो सेकेंडली अब इसकी डिग्री चेक कीजिए, इसकी x की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर में y की भी 1 है, 1 1, नीचे भी 1 1, सेम डिग्री है, therefore clearly it is a homogeneous differential equation। अच्छा, अभी अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते आप ये, तो बस आप ये स्टेप कीजिए, y अपॉन एक्स को आप v पुट कीजिए, ठीक है। ऐसे वैसे इसमें क्या किया, यहाँ से x कॉमन निकाला। आप इफ यू डोंट वांट टू डू इट, सपोज यू डोंट वांट टू डू इट, आप नहीं भी करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, ये देखिए, डोंट डू इट। हम क्या करते हैं, इसको नहीं करना, इसको मत कीजिए, ओके, डोंट डू दिस, नहीं कर रहे हम, ठीक। आप सीधा कीजिए, आप करेंगे y अपॉन एक्स को v पुट किया, y इज इक्वल टू vx आ गया आपके पास, फिर dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx, इसी को नंबर 1 मान लीजिए। अब dy by dx की जगह क्या रखेंगे, v प्लस x dv by dx, ठीक है जी, v प्लस x dv by dx आपने पुट कर देना है, ओके। हाँ जी, ये v प्लस, ये देखिए इस dy by dx की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये वैल्यू जो अभी आपने ये v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू के बाद ये देखिए यहाँ पर x की जगह x रखिए एंड y की जगह हमारे पास क्या आया है, ये vx आया है, ये पुट कीजिए अपॉन x माइनस vx, ठीक है। ऊपर से भी x और नीचे से x, इट इज कैंसिल, सो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, क्या कॉमन है, x कॉमन कैंसिल, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। नाउ वी विल टेक दिस v टू दिस साइड, अब इस v को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, लेट अस सी। ये आपके पास ये आया, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये वाला स्टेप है जो आपके पास, दिस स्टेप है ना। तो x dv by dx यहाँ पर रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, माइनस ये उधर हो गया, एंड व्हेन यू हैव सिंप्लीफाइड इट, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आया है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया ना आपने, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी आया। अब ये देखिए, ये v वाली टर्म्स है और ये x वाली टर्म्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करके इसको हम, ये हो गया अब आपके पास वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया जब आपके पास ये आ गया। Now it is 1 minus v upon 1 plus v square का इंटीग्रेशन, and it will be done with respect to v, तो यहाँ पर dv हम लिखेंगे, ये dv यहाँ पर लिखा जाएगा dv, okay, and after this either dx on the right side, it is dx upon x, okay। Now we can see here, in the denominator it is quadratic, in the numerator it is linear, and in the quadratic coefficient of v is not here, ठीक है, v स्क्वायर भी है, कांस्टेंट भी है, तो वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, हमने सेपरेट किया, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली यहाँ पर होगा अगर ये 2v हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई
एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 भी हो जाएगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट न्यूमरेटर में है तो log ऑफ दिस, इधर भी log ऑफ दिस, एंड दिस इज योर कांस्टेंट c। सो tan इनवर्स v इज इक्वल टू, ये इधर कर दीजिए, आप शिफ्ट कर दीजिए इसको, log x, एंड दिस इज 1 माइनस 1/2 इधर जाके प्लस 1/2, या आप ऐसा कीजिए ये 1/2 जो है इसकी पावर बन जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी अगर आप यहाँ पर log a प्लस log b देखिए तो log a भी कर दिया हमने, अब हमने b की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर y अपॉन x। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज कैंसल्ड नाउ, व्हाट इट वुड बिकम लाइक दिस, ओके। सो इट्स डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी, dy बाय dx इज इक्वल टू की फॉर्म। तो हमने सबसे पहले dy बाय dx इज इक्वल टू की फॉर्म बनाई। ऊपर डिग्री कितनी है, यहाँ 2, इधर 2, यहाँ पर x एंड y की दोनों की 1 प्लस 1 2 हो गई है भी, ठीक है। तो आप ये स्टेप चाहे मत कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर y अपॉन x है तो y अपॉन x को v पुट करके y इज इक्वल टू vx हो जाएगा। dy बाय dx निकालेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब इसके बाद आप dy बाय dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, y की जगह ये रख दीजिए vx, तो यहाँ पर v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x इंटू vx आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल होके you have got it, and this v will come to this side, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। and after this ये आपका यहाँ पर ऐसे है और नीचे ये 2v है, this is 2v, this is v square minus 1 minus 2v square, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ओके। फिर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। हाँ जी, अब हमारे पास ये अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके आया 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर dv लिखा जाएगा, एक चीज फिर मिसिंग है, यहाँ dv लिखा जाएगा क्योंकि यू आर टू इंटीग्रेट हियर विद रिस्पेक्ट टू v। तो because derivative of denominator is directly available here in the numerator, so its integration will be log of 1 plus v square is equal to minus log of x, because you can see here यहाँ on the left side also it is in terms of log, on the right side also it is in the terms of logs, therefore we will take the constant of integration also in terms of log, that will be log c, and this will be shifted to this side, log of a plus log of b is known, then log ab is equal to log c, taking anti-log, and this log and this log will be removed by taking anti-log, and it will become now 1 plus b square into x is equal to c, ठीक है जी। अब यहाँ पर put the value of v, v की वैल्यू क्या थी y upon x, and simplify this, and after simplification it would be like this, okay। So it's done. Now come to question number 5. It is now x square dy by dx is equal to x square minus 2y square plus xy. This x square will be shifted to this side, इससे डिवाइड कर दिया जब आपने, तो आपके पास ये क्या आया है, दिस इज 1 माइनस 2y अपॉन x होल स्क्वायर प्लस y अपॉन x, y अपॉन x को आपने भी पुट कर लिया। अच्छा, ये कैसे डिसाइड किया आपने कि ये होमोजेनियस है, आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाउ इट हैज बीन डिसाइडेड। ये देखिए यहाँ पर ये डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, x एंड y की मिला के दोनों की 1 1 डिग्री दैट इज 2, और इधर भी x स्क्वायर जब नीचे आएगा उसकी डिग्री भी 2 है। न्यूमरेटर में भी पूरा डिग्री 2, एंड इन द डिनोमिनेटर आल्सो व्हेन दिस विल कम टू दिस साइड डिग्री इज 2, सेम डिग्री है, दैट्स व्हाई इट्स होमोजेनियस, ओके। उसके बाद y को vx पुट करके आपने इसको कर लिया, and put the value of dy by dx, this is v plus x dv by dx, यहाँ पर पुट किया इसको,
ठीक है, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2v स्क्वायर। आपका वेरिएबल सेपरेबल बन गया। ये वेरिएबल सेपरेबल, इसको बनते ही इसको सेपरेट कर दीजिए, v को इधर और ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है, ये रूट 2v होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपका 1/2a इंटीग्रेशन लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स की फॉर्म, x में अब रूट 2b है। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड। देखो मैं दोबारा से यहाँ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, जस्ट सी हियर, इट इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c. So the same formula we have used here. A is here 1, a की जगह आपने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए a कितना है, 1 है, एंड x कितना है, दैट इज रूट 2v। x कितना है, रूट 2v। तो आप x की जगह रूट 2v लगाइए और a की जगह 1। बट डोंट फॉरगेट, यहाँ पर जब हमने 1/a किया, यहाँ 1/a किया आपने इधर, तो a जो आपके पास था 1 था, तो 2 into 1 हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर फिर ये आपके पास 1/2 into 1 होना चाहिए। रूट 2 कैसे आया, ये रूट 2 कैसे आया आपके पास, रूट 2 है आपका ये v का कोफिशिएंट, दैट इज रूट 2। ये इधर आया है आपके पास 1/2 रूट 2 बन गया ये। ठीक है, log ऑफ 1 प्लस रूट 2v, 1 माइनस रूट 2v, ये सब log में था, so that's why constant of integration is also in terms of log। तो log a plus log b हो गया log ab। okay, log ab कर दिया। now we will put this 1/2 रूट 2, ये जो आपका इधर है 1/2 रूट 2, it will shift to this right side to get it multiplied with this। और अब हम y की वैल्यू जो है, v की वैल्यू सॉरी, y अपॉन x विल सब्स्टिट्यूट दैट। अब हम वो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आपके पास क्या था, ये कि ये आपके पास था, है ना। तो हमने क्या किया, ये 2 रूट 2, बिकॉज इट इज 2 रूट 2 log xc, तो ये 2 रूट 2 जो है आपका, ये इधर से हटके यहाँ एज अ पावर में आ जाएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग दैट a log b becomes log b raised to power a। I have used this property। okay, so now this, it will become like this, and now we can take on antilog, antilog से ये log आपका हट जाएगा। now put the value of v, that is y upon x, and simplify। this is your final answer, this is the final answer। now come to next question, that is your x dy minus y dx is equal to square root of x square plus y square dx। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसको dy by dx is equal to की फॉर्म में लिखना है। तो dy by dx is equal to this, ये x इधर आएगा। ठीक है, x will come to this side also, यहाँ भी आएगा ये x, है ना। so what I have done here, this x can be written as square of x square root x square। if you take it x square, तो ये square root में आ जाएगा, it will be written like this, so it will be cancelled, so it will become y upon x whole square। ठीक है जी। if you don't do it like this, then what to do, then it becomes from after this, from इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, x dy by dx is equal to y plus x square plus y square है आपके पास, है ना। अब इसके बाद आपने लिखना है dy by dx is equal to y plus square root of x square plus y square upon x। okay, now we will check the degree, here it is degree 1,
एक्स स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, डिग्री 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट हो गया तो डिग्री 1 कंसिडर होगी इसकी भी, और इसकी डिग्री भी 1 है, तो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर आप ये ना करें तो भी, ये अगर स्टेप्स आप ना करें, आप पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, तो y कितना हो गया vx। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करते हैं तो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx होगा। पुट इट हियर इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू y की जगह vx रखेंगे, y की जगह क्या आएगा vx आएगा यहाँ पर, ओके। y की जगह vx प्लस, अब इसके बाद स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब अगर मैं इस साइड को, ये एज इट इज है एंड दिस इज वी एक्स राइट साइड में, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, बट इट इज इन द स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन, अगर आप इसको स्क्वायर रूट साइन से बाहर निकालते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये x बाहर आ गया स्क्वायर रूट साइन से, एंड दिस x will be cancelled by this. Now ultimately you will left with v, ये वाला on the left side it will be v plus x dv by dx, and on the right side, देखिए लेफ्ट साइड में तो ये आ गया v plus x dv by dx, and on the right side it will be v plus square root of 1 plus v square. This will be on your right hand side. Okay, now come to next step. ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अपने हिसाब से कर लिया। अब फ्रॉम लेफ्ट साइड में ये जो v है राइट साइड के, इस v से कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, नाउ आपके पास क्या बचेगा, x dv by dx, ये देखिए x dv by dx on the left side, and on the right side क्या बचेगा आपके पास, ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, लास्ट में जो कॉर्नर में लिखा हुआ है आपके पास, व्हाट इज दैट, इन दिस कॉर्नर एट लास्ट square root of 1 plus v square is left. Here you can see it यहाँ, ठीक है जी। अब आप वेरिएबल सेपरेबल किए, आपको दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल है, आप इसको टेक द टर्म्स with v on one side and with x on the other side, okay। इसके बाद इसको डायरेक्ट आप कीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेट डायरेक्ट हो रहा है लॉग टर्म्स में, ये भी लॉग है तो आप कांस्टेंट भी लॉग की टर्म में ही लीजिए, log a plus log b हो गया, टेकिंग एंटी log विल बी रिमूव्ड, पुट द वैल्यू ऑफ v, सो इट इज डन, log हट जाएगा, आपके पास यही बचेगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू xc, और इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओनली 2 मोर स्टेप्स आर लेफ्ट। हाँ जी, देखिए इसमें जो हम लास्ट क्वेश्चन अभी कर रहे थे, इसमें ये स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन यू कैन सी कैसे log is removed from both the sides,
लॉग घट गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एंटी लॉग लेने पर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले ही, इफ देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें अगर एंगल जो है y अपॉन x या x अपॉन y है, देन इट इज होमोजेनियस। देखते सार पता चल जाता है कि ये होमोजेनियस है, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप नहीं है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये तो होमोजेनियस ही है। बस सबसे पहले हमने dy by dx की फॉर्म में लिखा। dy by dx की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो उसके बाद ये आपका इस तरीके से बन गया है। अच्छा देखिए, अगर आप इसमें ये जो आपके पास है, अगर आप इस नहीं करना चाहते देन यू लीव इट, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये स्टेप मत कीजिए, डोंट डू दिस स्टेप, ठीक है। आप सीधा क्या कीजिए, इस स्टेप के बाद जो आपको फर्स्ट स्टेप दिया है, इसके बाद आप जस्ट पहले dy by dx निकालिए। हमने dy by dx निकाला, ये देखिए ये dy by dx निकाल लिया। ओके, dy by dx निकालने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो एंगल है वो भी y अपॉन x की फॉर्म में है, इसीलिए हमने dy by dx निकाला। इफ you find this angle in terms of x upon y, then you should have written dx upon dy, तब हम dx upon dy निकालते, लेकिन ये y cos था एंगल या sin का एंगल जो था, it was in terms of y upon x, that's why we have written it, we have taken it in form dy by dx. Okay, that's why, because and the same, because of the same reason I have taken this y by x is equal to v put किया, तो y by x is equal to v है, तो y is equal to vx हो गया। अब differentiate with respect to x, dy by dx is equal to, by using the product rule as I have told you earlier also, v plus x dy by dx. Now we will put it here, इस equation में हम ये put करेंगे, इस equation में we'll put it in this first equation, we will put it, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx की जगह तो ये आ जाएगा आपके पास ये v plus x dv by dx, ये आपका dy by dx की जगह आपने यहाँ पर राइट साइड में लिखना है। राइट साइड में लिखने के बाद इक्वल टू साइन, फिर x की जगह x रहने दीजिए, एंड cos y अपॉन x की जगह v प्लस y की जगह vx एंड देन sin v, फिर आएगा sin v अपॉन y की जगह vx sin v माइनस x की जगह x, फिर cos v। आपका x कैंसिल हो गया, राइट साइड में वही आएगा, ये आपका यहाँ पर राइट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है जी। फिर इक्वल टू x, आप देखिए न्यूमरेटर में भी है एंड x इज इन द डिनोमिनेटर आल्सो, यू टेक इट आउट कॉमन, तो आपके पास आएगा cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v माइनस cos v, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर जो आया है हमारे पास, ठीक है, cos v plus v sin v upon v sin v minus cos v. Here x has been, it is cancelled. हाँ जी, हमारा ये बीच में एक ये y और x रह गया था, ये बीच में ये y अपॉन x रह गया था, इसमें यहाँ पर ऊपर y अपॉन x भी था, यहाँ पर y अपॉन x भी है, तो यहाँ पर ये y अपॉन x भी है, ठीक है, y अपॉन x, तो y अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, y अपॉन x तो वैसे ही b है आपका, तो हम y अपॉन x की जगह यहाँ पर लिखेंगे b into this, तो आपके पास एग्जैक्टली यू कैन सी दिस टर्म यू हैव ऑब्टेन्ड, यही सेम टर्म आपके पास आ गई है, ठीक है, दिस इज द सेम टर्म यू हैव ऑब्टेन्ड, यहाँ पर बिल्कुल सेम यही वाली टर्म है, ये देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके पास सेम आ गई है, और ये आपकी लेफ्ट साइड में ये वाली टर्म है जो कि सेम है, ठीक है, तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस आल्सो। नाउ आफ्टर दिस व्हाट टू डू, अब इसके बाद फिर आपने
अब इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसको b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, न्यूमरेटर को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो आपके पास ये इधर से b है ये आपका शिफ्ट होकर राइट साइड में आ जाएगा, इट विल कम टू राइट साइड, माइनस b बन जाएगा। ये देखिए नीचे माइनस b बन गया। नाउ अपॉन 1 लेके वी विल फाइंड आउट द एलसीएम, विल टेक आउट इट, एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, ठीक है, you can see it how it has been done। अब वेरिएबल सेपरेबल इट हैज बिकम, v वाली टर्म्स एक साइड हो गई और ये v को आप dv के पास लेके जाएंगे, it will go to up and it will come to down, और ये x dx इधर आ जाएगा, dx upon x it will come to this side। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट है आपके पास, बस एक माइनस का फर्क है, वो माइनस बाहर कर दीजिए आप, तो cos v माइनस b sin v बन जाएगा, और v cos v का डेरिवेटिव डायरेक्ट आपके पास ऊपर आ गया है, ठीक है। अब देख लीजिए इंटीग्रेशन पार्ट, तो यू चेक इट फ्रॉम हियर, बस लास्ट में आपको यहाँ पर इट वाज कमिंग इन टर्म्स ऑफ लॉग में आ रहा है, दिस इज आल्सो कमिंग इन टर्म्स ऑफ लॉग, so that's why this constant of integration also it has been taken in terms of log। ये log a plus log b भी हो गया, this 2 has been taken to the right side to log x c हो गया। now it will become your minus आपके पास है माइनस log t, और t किसको माना था आपने, v cos v को, t की जगह हमने v cos v रखा, एंड here it is log xc की पावर 2 हो जाएगी, क्यों 2 होगी, क्योंकि ये इधर चली जाएगी, ठीक है, और ये आपके पास इसमें भी इसको पावर इधर चली जाएगी, ये -1 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ v cos v की पावर -1 एंड log ऑफ x c की पावर 2, एंड log कैंसिल्ड, तो ये बनेगा v cos v पावर -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। v मीन्स y अपॉन x, पहले तो हम इसका माइनस हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, माइनस जब आप हटाते हैं तो ये बनता है 1 अपॉन v cos v इज इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर, एंड 1 अपॉन cos v का मतलब क्या बनेगा आपके पास, secant v, तो आप लिखेंगे secant v अपॉन v is equal to x square c square। now put the value of v, that is y upon x, secant y upon x upon v, v means again this is your angle, ये आपका एंगल है, this is again y upon x is equal to x square c square। अब ये आपका जो x है इट विल डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, x secant y अपॉन x अपॉन y जो है वो इधर चला जाएगा, y x स्क्वायर c स्क्वायर, 1x will be cancelled, so secant y upon x is equal to x by c, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें x डिवाइड बाय dx माइनस y प्लस x साइन y बाय x इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम इसको dy बाय dx की फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो क्लियर है कि इंटीग्रेशन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये x इधर आ गया तो y अपॉन x माइनस दिस इज कैंसिल साइन y अपॉन x। अब ये साइन में y अपॉन x एक्चुअली इसको देखते ही हमें ये पहले पता चल गया था कि ये डिफरेंशियल आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपने y अपॉन x था ये, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो y अपॉन x है तो इसीलिए हमने इधर भी dy बाय dx की फॉर्म में लिखा और ये dy बाय dx को v पुट कर दिया। ठीक है, बस अब इसके देख लीजिए, सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है कि इसके स्टेप्स आप देख लीजिए, इट्स वेरी इजी।
check the steps of calculation from here. Okay. हाँ जी, जो सेकेंड आपका यहाँ पर देखिए, जो भी ये सेकेंड वी था, हमने उसको 1/sin(y/x) लिख लिया, और ये जो कॉट था इसको हमने क्या किया है, cos/sin लिखा है, एलसीएम ले लिया फिर इसका। अब ये माइनस पावर जब इधर आएगा तो इसकी पावर -1 बन जाएगी, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया फिर हमने, तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे। इसके बाद टेकिंग एंटी लॉग लेके ये आपका लॉग खत्म हो गया, दिस इज लेफ्ट नाउ and this will be shifted to this side, so it's solved. Now come to question number 9. Question number 9 में देखिए log के साथ y/x है, log के साथ जैसे ही y/x आया तो हमें पता चल गया कि ये आपका क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें करना क्या था, dy/dx की फॉर्म लेके आनी थी, तो हम ये dy/dx की फॉर्म ले आए हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, इफ यू लीव दिस स्टेप नो प्रॉब्लम। अगर आप इस स्टेप को छोड़ देते हैं, ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी करते, अगर आप इसको छोड़ देंगे, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए आप इसको, मत कीजिए। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद आपने करना है कि यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि लॉग के साथ ही ना y/x था, तो हमें पता चल गया कि हमें y/x को ही v सब्स्टिट्यूट करना है। तो y/x को v पुट किया हमने, y/x को v पुट करने के बाद y इज इक्वल टू vx हो गया, इसका हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx आ जाता है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए। जब इसको आप यहाँ पुट करते हैं, कहाँ पुट किया हमने, यहाँ पर पुट करना है, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पुट करना है, तो dy/dx की वैल्यू पुट कर दी आपने, v प्लस x dv/dx इक्वल टू में y की जगह क्या आएगा, vx, ये y की जगह क्या है आपके पास, vx पुट करना है, तो हम इस y की जगह vx पुट कर रहे हैं अपॉन 2x माइनस x log, और y/x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, v। यहाँ से देखिए x कॉमन है, आप कॉमन निकाल दीजिए, ऊपर वाले इस x के साथ वो कॉमन वाला x कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल बी लेफ्ट विद v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v, ये आएगा, देख लीजिए आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आप देखिए नीचे आपके पास यही आया है, अभी सिंप्लीफाई करके ये देखिए ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया है, यही है ना, यही आया है, सेम इज दिस, है ना। अब आप इस वे को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड में यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ओके। अब इसके बाद कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया है, इसका कैलकुलेशन किया है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आइए, नीचे आते हैं जब आप, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन पार्ट यू चेक इट फ्रॉम हियर, हमने सेपरेट कर लिया इसको भी, और v यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है, और इसको सेपरेट कर लिया। अब देखिए log v -1 का डेरिवेटिव डायरेक्ट है 1/v आपके पास,
है ना। यहाँ पर भी हमने log v माइनस 1 को t पुट किया, इधर भी log v माइनस 1 को t पुट करना है, और ऊपर वाला log v यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, ये देखिए 1 प्लस टी आ गया, क्योंकि दोनों में 1/b ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास। तो आप ये देख लीजिए, इसके स्टेप्स चेक कर लीजिए कैसे इंटीग्रेट किया है। तो ट्राई इट योरसेल्फ, इंटीग्रेशन पार्ट तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ नाउ। लास्ट में t के बाद t की वैल्यू पुट करना, t की वैल्यू log v माइनस 1, फिर v की वैल्यू भी दोबारा से, यानी दो बारी सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले दोबारा, पहले एक बारी हमने y अपॉन x को v पुट किया था, फिर उसके बाद v log v माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट किया, तो जब t है तो दोबारा उसको v की टर्म्स में, और फिर v को हम दोबारा किसके टर्म्स में, y अपॉन x की टर्म्स में लेके आएंगे। ठीक है, check the solution from here and try it yourself. Now next question is 10. देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, if in the terms of means in log or in any trigonometric function or in exponential function, यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, अगर ये खाली x होता तब तो ये homogeneous differential equation it is not possible, तब तो ये होता ही नहीं homogeneous differential equation, क्योंकि e की पावर में x अपॉन y है इसलिए ये होमोजेनियस है। लेकिन e की पावर में x अपॉन y है, y अपॉन x नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर dx अपॉन dy करेंगे। अब ध्यान दीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला, कि यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए यहाँ क्या है, ये e की पावर में x अपॉन y है, इस वजह से ही ये dx अपॉन dy लिखा है, dy अपॉन dx नहीं। अच्छा अभी देखो ये आपकी होमोजेनियस है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये होमोजेनियस तो है ही है। अब आपने x अपॉन y, बिकॉज इट इज here also it is x upon y and we have converted it in the form of dx upon y, देखो x upon y को v पुट करना है, y upon x को v पुट नहीं करना है। x upon y is equal to v, तो x is equal to vy हो गया। अब हमने डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जस्ट टू गेट dx upon dy। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y dx upon y, अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, v will be written as it is, plus now y will be written as it is, है ना, एंड v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा आपका dv by dy हो जाएगा, ये देखिए dv by dy। नाउ यूज इट इन वन, अब यहाँ पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है आपकी dx अपॉन dy की यहाँ पर आएगी इक्वल टू, यहाँ पर माइनस e की पावर b 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस e रेज़ पर b। अब ये जो b है इट विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड ऑन द राइट साइड एंड वी विल कैलकुलेट इसको, वी विल सिंपलीफाई दिस फर्दर। ओके, हाँ जी देखिए इसमें हम माइनस बी इधर ले आए इधर, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे हम, माइनस बी को विल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस e रेज़ पर b, b आपका कैंसिल हो गया है ना, वी आर लेफ्ट विद दिस। नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल, ये v वाली टर्म्स अलग हो गई और y वाली अलग, तो ये dv अपॉन ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, dv अपॉन आ जाएगा, और ये dv dy अपॉन y इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आप देखिए डायरेक्ट ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, v का 1 होता है ev का e रेज़ पर b एज इट इज, तो आपका डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर का डायरेक्ट न्यूमरेटर में आपके पास प्रेजेंट है, तो आपने इसको डिनोमिनेटर में t जैसे पुट करते हैं तो ये आपके पास dt है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट है, तो log of v plus e raised per v you can do it directly also, and on the right side it is minus of log y। अब ये देखिए यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल आल्सो कम इन द टर्म्स ऑफ log की टर्म्स में लिख लिया। अब ये माइनस विल शिफ्ट टू दिस साइड, log a भी हो जाएगा, log a प्लस log a भी लिख दिया है, टेकिंग एंटी लॉग आपने। अब फिर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप t की वैल्यू पुट कर दी आपने, ठीक है, और फिर v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू पुट करते हैं आपके पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए आप, 11th क्वेश्चन में dy by dx, अच्छा यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि नाउ इन दिस केस यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज दिस,
ठीक है, तो हम पहले इस तरीके से जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद x एंड y की वैल्यू विल पुट हियर, और फिर उसके बाद c की वैल्यू निकालने के बाद फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको यहाँ पर देना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो dy by dx आपके पास आ गया। ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये करने की जरूरत नहीं, बस इसी में आप इसको करने की जरूरत नहीं है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। कि हम अगर इसको ना भी करें, ये ना भी करते, तब भी आप इसमें y upon x is equal to v पुट कीजिए और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इवन देन यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है जी, हाँ जी, देखिए हमारे पास था ये dy by dx is equal to y minus x upon y plus x। तो हमने यहाँ पर ये जो dy by dx है, इसकी जगह v plus x dv by dx पुट किया, एंड ऑन द राइट साइड जो आपके पास ये देखिए यहाँ पर हमने v plus x dv by dx पुट किया है, एंड y को रखा vx माइनस x अपॉन vx प्लस x। तो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन जो है निकल के दैट विल बी कैंसिल, तो आपके पास रह गया v plus x dv by dx is equal to x कॉमन v minus 1 v plus 1 x, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन था वो कैंसिल हो गया, और यही आपके पास इधर देखिए फर्स्ट स्टेप में है। ठीक है, अब इसके बाद v को यू विल शिफ्ट टू दिस साइड। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक है, बट द कोएफिशिएंट ऑफ v इज नॉट हियर, तो वी विल सेपरेट द न्यूमरेटर। इसको न्यूमरेटर को सेपरेट कर लिया आपने, और फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होना चाहिए, जबकि हमारे पास v था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। तो आपके पास डायरेक्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, इसलिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स v अपॉन a आपका मनी है, माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। सो इट्स very easy, it has been done। Now let us, you can see further steps। v की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, y अपॉन x है, ठीक है, और लॉग ये वाला जो आपका लॉग था इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, लॉग a प्लस लॉग b अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर log a प्लस log b, ठीक है, log a भी हो गया, सिंप्लीफाई किया। अच्छा, क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, आपको दिया हुआ है कि y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, y की जगह भी 1 पुट कर दीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 5, और यहाँ पर भी ये 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कहाँ कब होता है आपका, ये पाई बाय 4 पर होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, y की वैल्यू 1 थी, मैंने 2 सोच लिया, y की वैल्यू 1 है यहाँ, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, ये आपका log 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई दिस एंड यू गॉट दिस वैल्यू ऑफ c। अब जो c की वैल्यू आई आपके पास, एक्चुअली 2c था, यहाँ पर 2c की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ गई, log 2 plus pi by 2, put the value of this c here in this equation number 2, and in this way this is done, it's done। 12th क्वेश्चन, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही आपको निकालना है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी एट दैट टाइम इट इज 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, dy by dx is equal to की फॉर्म में ले आइए, ये इसको आप चाहे मत ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मत कीजिए, चाहे इस स्टेप को आप रहने दीजिए, डोंट डू दिस स्टेप, ठीक है, इस स्टेप को मत कीजिए, ओके। तो अब आपके पास ये जो आ गया है, इसमें क्योंकि यहाँ y अपॉन x है, तो हम y अपॉन x को b पुट करते हैं, तो ये आपके पास dy by dx की वैल्यू आ गई। अब इसे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, v प्लस x dv by dx इक्वल टू के बाद माइनस है, x की जगह x ही रहेगा, y की जगह vx आ जाएगा,
प्लस वाई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर है ना, और ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गए एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स स्क्वायर कॉमन नीचे वाले से कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आएगा वो आएगा b प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ये आपके पास यहाँ पर ही दिया है, इधर देख लीजिए यही आया आपके पास ऑन द राइट साइड, यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए व्हाट इज दिस, सेम है ना, यही चीज है आपके पास। अब आपने वेरिएबल सेपरेबल, इट इज वेरिएबल सेपरेबल हो गया ये आपका, फिर अभी पहले v को इधर ले आइए, माइनस 2p हो गया, आफ्टर दिस इट इज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल किया इसको, ठीक है। और अब आप यहाँ पर जो है ये आपका क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो अब इसमें से इसको ऐसे करने के बजाय आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं dv अपॉन v प्लस 2, यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है जी। एंड इसमें आई हैव डन इन द अदर वे, आपका ये जो था ना आपके पास ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसमें हाँ आई हैव सॉल्व इट लाइक दिस, मैंने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, बाय पार्ट्स किया है, जबकि यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने b कॉमन निकाल लिया, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करके इसके सॉरी बाय पार्ट्स करने की कोशिश करके इसको a और b की वैल्यूज निकाल के यहाँ पर a और b की वैल्यूज यहाँ पर पुट की और इसका इंटीग्रेशन किया। आप देख लीजिए राइट साइड में यहाँ पर, और ये 1/2 यहाँ से दोनों में से कॉमन निकाल के log a माइनस बी log a अपॉन b कर दिया, ठीक। और ये जो पावर थी ये सॉरी ये जो इसका 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसकी पावर बना के इधर इस तरीके से कर दिया, यानी कि ये पूरा जो है इसका इंटीग्रेशन मैंने, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो राइट साइड में हम माइनस लॉग एक्स होगा, इधर भी लॉग में है आपका, तो इसको किया जा सकता है आगे, आप यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। लेकिन यहाँ देखिए मैंने जो किया यहाँ पर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया, तो देख लीजिए कैसे किया है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको, ठीक है। अल्टीमेटली तो वही आया, देखिए यहाँ पर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया तब भी यही चीज आई है जो इधर आई थी। अब इसके बाद ये इसने यहाँ पर इसको एज इट इज रखा, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट नहीं किया इधर से, ये वाला टर्म नहीं लिया इन्होंने, यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं लिया है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये वाला टर्म और इधर देखिए ये वाला टर्म सेम है, यहाँ पर था क्योंकि ये भी लॉग था इधर भी लॉग, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लिया, and this 2 is shifted to right side, this 2 is shifted to this side, देखिए यहाँ पर आ गया ये, और इसके बाद ये जो पावर इधर बना दिया, ये जो 2 है आपका ये पावर में चला गया, अब ये इधर y की जगह v अपॉन x की वैल्यूज रख दी और ये इधर शिफ्ट कर दिया, log a प्लस log b का फॉर्म लगा दिया, क्या होता है आपका log ऑफ a इंटू b कर दिया इसको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद on the right side also it is log taking anti log, इसको सिंपलीफाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटिंग ये सॉरी कम आपको क्या निकालना था, x and y वैल्यू ऑफ x and y हैव बीन गिवन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना उसके लिए c की वैल्यू जरूरत है, तो y की वैल्यू 1 and when x is equal to 1, put the value c square, it has come out 1/3, put the value of c square and this is your final answer।
जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ भी क्योंकि साइन के साथ स्क्वायर के साथ y अपॉन एक्स है, इसी से क्लियर हो गया है कि ये आपका होमोजीनियस है। चलिए अब y अपॉन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आते हैं और इसमें भी देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। जैसे बोला है जब x की वैल्यू 1 है देन y इज इक्वल टू पाई बाय 4 वी विल यूज इट एट लास्ट। ठीक है, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म निकाला है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद y अपॉन x को भी सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बहुत ही आसान सा था ये। तो इसमें ये आ गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर जिसका होता है माइनस कॉट, माइनस माइनस कैंसिल, और ये लॉग एक्स प्लस सी कॉट। यहाँ y की वैल्यू y अपॉन x पुट किया। अब आपने y को पुट करना है पाई बाय 4, x को 1 पुट करना है, यहाँ भी x को 1 एंड log 1 इज 0, log 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर cot पाई बाय 4 का वैल्यू भी 1 ही होता है। cot पाई बाय 4 1 होता है तो c 1 आ गया। अब c की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। सो इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर अब 14 जो है ना, इसमें भी आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos और उसमें y अपॉन x है। तो यहीं से ये क्लियर हो गया कि इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। y की वैल्यू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू ये y अपॉन x है तो y अपॉन x को ही आपने पहले v पुट करना है सबसे पहले, लेकिन dy बाय dx की फॉर्म लिख लीजिए, फिर y अपॉन x को आप v की फॉर्म में पुट कीजिए और dy बाय dx की फॉर्म आ गई। नाउ आफ्टर दिस ओनली what is left, put substitute the values of this dy by dx। हाँ जी देखिए सिंपल है, इंटीग्रेशन आप देख लीजिए, अब इसके स्टेप्स देख लीजिए। look here how it has to be done, very simple। I'm not going to explain you each and every step, you can verify your steps of calculation from here। okay, देख लीजिए। in 15th question again, total actually there are 16 questions है, ये अब हम 15 सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में पहले लेके आइए इसको। ठीक है, अब ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं पर ये y अपॉन x को भी पुट करके आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू 1 है और इसमें पहले भी मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि इसको जैसे ये फॉर्म लिखा है ना, इसको एग्जाम में ना ये जो फॉर्म ऐसे लिखा है ना आपके पास कि y is equal to 2 when x is equal to 1, it could be written like this also कि y1 is equal to 2, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है जब at that time y is 2। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, so now next is check the steps from here। अब एक बार स्टेप्स चेक करते जाइए। It's also very easy, nothing new, nothing extraordinary is there, very simple question is this। you can check the steps of calculation। हाँ जी चेक कर लीजिए इसके steps, just look here because it is v 1 upon v square था ना, तो इसको हमने v raised पर -2 ले लिया और ये तो लीनियर है तो हम इसको log x लेंगे। okay, look here how it has been done, you can see। लेकिन अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो आपको गिवन है when x is equal to 1 then put the value of y that is 2, पुट कर दीजिए x की y की वैल्यू and you know that log 1 is 0, log 1 का वैल्यू कितना होता है जी आपका 0 होता है, वो 0 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू -1/2 है। अब वो जो c की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर दीजिए, सो इट्स डन, हो गया आपके पास ये। ठीक है, सो y इज इक्वल टू की फॉर्म में ये आ गया है। अब है लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx upon dy is equal to hx upon y can be solved by using which substitution। बहुत ही आसान है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये x upon y है ना, तो हम सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, x upon y is equal to v, यानी h में भी log of x upon y हो सकता था, h में भी sin of x upon y, h में भी e raised to power x upon y। तो मैंने क्या बोला था, इसको चेक करते हैं, अगर ये x upon y है तो सब्स्टिट्यूशन x upon y होगा, अगर ये y upon x होता तो सब्स्टिट्यूशन y upon x is equal to v होता।
So with this question number 16 here, this exercise is